آدھی رات کا وقت ہے، شاید یہ مہینے کی سب سے تاریک رات ہے۔ اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چوکور کتبے سایوں کی طرح لگ رہے ہیں جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے ہیں۔ ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک پر اسرار سی دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس نے قبرستان کی ماتمی فضا کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا۔ اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دے جاتی ہے۔ کبھی یہ آواز ایک لمبی کراہ میں تبدیل ہو جاتی، ایک لمحے کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی اور اس کے بعد ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگتی، جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبرستان کی یہ پر اسرار خاموشی میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی ہے، اور یہ تازہ بنی ہوئی قبر ہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے افریتی ہورر سٹوری ایپیسوڈ نمبر 25۔ جیسے ہی جمشید کے چہرے پر پانی کا چھینٹا پڑا وہ غائب ہو گیا۔ جوگن نے جھک کر دیکھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے جمشید بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک چھوٹا کالا سانپ بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ جوگن نے اپنے سر کے اوپر کھلے بالوں کا جوڑا بنایا اور سانپ کو اٹھا کر جوڑے کے اندر اچھی طرح سے جکڑ کر چھپا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سانپ کے آلوپ منتروں کے زبردست طلسم کے اثر میں ہے اور ذرا سی بھی حرکت کے قابل نہیں ہے۔ جوگن نے لمبی زبان والی ڈرونی مورتی کو ماتھا ٹیکا اور گنگا جل کا ڈول ہاتھ میں لے کر شو استان کے غار سے باہر نکل آئی۔ باہر ٹیلے کی ڈھلان پر بھیگی ہوئی رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جوگن پہاڑی کی ڈھلان پر سے اتر کر دریا کی طرف چل پڑی۔ دریا پر گھاٹ کے قریب اس کی کشتی ایک طرف کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئی اور کشتی دریا کے بہاؤ کی لہروں پر چل پڑی۔ جمشید کالے سانپ کی شکل میں جوگن کے بالوں کے جوڑے میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس کا جسم بے حس ہو چکا تھا۔ صرف اس کا ذہن بیدار تھا اور وہ دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے جوڑے کے بال تھے، مگر ان کے درمیان سے وہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے چپو چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ جوگن اسے سانپ کے روپ میں تبدیل کرنے کے بعد کشتی میں سوار ہو کر کسی طرف لے جا رہی ہے۔ کچھ دور جا کر دریا میں سے ایک چھوٹی ندی نکل کر دائیں جانب جنگل میں چلی گئی تھی۔ جوگن نے کشتی دریا میں سے نکال کر ندی میں ڈال دی۔ وہ بھیگی ہوئی رات کی تاریکی میں کشتی چلا رہی تھی۔ جوگن نے جمشید کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر وہ شکتی، وہ طاقت آ چکی ہے جس نے اسے امر بنا دیا ہے، اور اس کے عقیدے کے مطابق وہ موت کی گرفت سے نکل گئی ہے۔ لیکن 3 لوگ کے اوتاروں کی سب سے بڑی پجارن اور دیوی بننے کے لیے ابھی اسے ایک اور چیلا کرنا تھا۔ اسی مقصد کو لے کر وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ جہاں ندی جنگل میں سے ایک موڑ گھوم جاتی تھی، وہاں آ کر جوگن کشتی کنارے سے لگا کر اتر پڑی اور جنگل میں چلنے لگی۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ درختوں کی شاخیں ایک دوسروں میں الجھی ہوئی تھی۔ جوگن ان درختوں کے نیچے جھک کر جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک بڑے درخت کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر پہلے اپنے دائیں پھر بائیں دیکھا۔ درخت کا تنا اتنا بڑا تھا کہ اس کی بے شمار جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ درخت کے تنے کے اندر زمین سے لگا ہوا ایک تنگ ڈھلانی سرنگ نما راستہ اندر چلا گیا تھا۔ جوگن اس سرنگ جیسے راستے سے اتر کر درختوں کی جڑوں کے نیچے آ گئی۔ یہاں گولائی نما کھلی جگہ تھی۔ درخت کی ستونوں جیسی جڑیں زمین سے نکل کر اوپر درخت کے تنے تک چلی گئی تھی۔
जोगन दरख्त की जड़ों के सतूनों के दरमियान बैठ गई। उसने अपना जोड़ा खोलकर काले सांप को अपने बालों के जाल में से निकाला और ज़मीन पर लिटा दिया। जमशेद ने देखा कि ऊंचे ऊंचे सतूनों के दरमियान ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा है और जोगन उसके सामने बैठी अपने बालों में से कुछ निकाल रही है। ये स्याह रंग की लंबी सुइयां थी। जोगन ने काली लंबी सुइयां अपने पास ही ज़मीन पर रख दी और जमशेद के काले सांप पर गंगा जल का छींटा मारकर एक बार फिर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ये तीनों लोग की सबसे बड़ी पुजारन बनने का चिल्ला था। जमशेद सांप की शक्ल में उसके आगे ज़मीन पर पड़ा था और छोटी छोटी सांप की आंखों से उसे देख रहा था। उसने जोगन को अपने बालों में से लंबी नोकीली सुइयां निकालते देख लिया था। वो इस ख्याल से सहमा हुआ था कि खुदा जाने जोगन उसके साथ क्या करने वाली है। इतना तो उसे इल्म हो चुका था कि वो जोगन की कैद में है और जोगन अपना कोई मकसद हासिल करने के वास्ते उसके साथ कोई बेहानक सलूक करने वाली है। अब वो उसकी दुश्मन थी और जमशेद को उससे नेकी और हमदर्दी की तवक्का नहीं थी। जोगन ऊंची आवाज़ों में मंत्रों का जाप कर रही थी। फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने ज़मीन पर से एक लंबी नोकीली सुई उठाई और जमशेद के देखते देखते काले सांप की गर्दन में इतनी ज़ोर से दाखिल की कि सुई जमशेद सांप की गर्दन में से आर पार होकर आधी ज़मीन में उतर गई। जमशेद को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को दबोच लिया हो, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद उसका ये एहसास ख़त्म हो गया। जोगन ने एक बार फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते दूसरी नोकीली सुई उठाई और उसे भी जमशेद के सांप जैसे जिस्म में आर पार उतार कर उसे ज़मीन में गाड़ दिया। इसी तरह मंत्रों की जाप के साथ जोगन ने सारी लंबी नोकीली सुइयां जमशेद के सांप के जिस्म में गाड़ दी। अब काले सांप की हालत ऐसी थी जैसे उसे कील ठोंक ठोंक कर ज़मीन में गाड़ दिया हो। जमशेद का जिस्म पहले भी कोई हरकत नहीं कर सकता था। अब तो वो अगर होश में भी आ जाता तो हरकत नहीं कर सकता था। उसे लंबी नोकीली सुइयों के साथ ज़मीन में ठोंक दिया गया। वो उसी हालत में पड़ा जोगन को देख रहा था। जोगन ने उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरख्त के अंदर से बाहर चली गई। जमशेद सांप की शक्ल में ज़मीन में गड़ा रहम तलब निगाहों से ऊपर दरख्त के तने के अंदर से निकली हुई जड़ों के सतूनों को तकने लगा। वो पूरी तरह से जोगन के जाल में फंस चुका था और उसकी रिहाई की कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। रात गुजर गई। दरख्त के तने के शगाफ में से दिन की रोशनी अंदर आने लगी। बाहर दिन निकल आया। शाम तक दिन की रोशनी अंदर आती रही। सूरज गरूब होने के बाद रोशनी मानद पड़ने लगी। फिर रात का अंधेरा छा गया। दूसरी रात आ गई। जमशेद उसी बेबसी के आलम में ज़मीन में गड़ा दरख्त की जड़ों को तकता रहा। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि उसने दरख्त के शगाफ के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने अपनी छोटी छोटी सांप की तरह सुर्ख आंखों से शगाफ की तरफ देखा। शगाफ पर गहरी तारीकी छाई हुई थी। कदमों की चाप की आवाज़ खामोश हो गई थी। वो समझा कि जोगन आई होगी। कुछ देर गुजर गई मगर जोगन अंदर ना आई। अब उसे कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। वो अपनी आंखों के डेले घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। उसे अंधेरे में भी कुछ कुछ नज़र आ रहा था। उसी की वजह यह थी कि वो आधा इंसान और आधा सांप था। उसकी रूह इंसान की थी मगर जिस्म सांप का था और सांप अंधेरे में भी देख लेता है। उसे यूँ लगा जैसे कोई उसके करीब आकर रुक गया है मगर वहाँ उसे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जमशेद का दिमाग सोचने लगा कि पहले जो कदमों की चाप की आवाज़ और फिर किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी थी वो किसकी थी।
उसने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर बाहर से गुजरा है और कदमों की चाप की आवाज़ उसी की थी और लिबास की सरसराहट की आवाज़ मुमकिन है झाड़ियों में से गुजरती तेज़ हवा की हो। अचानक दरख्त के शगाफ की तारीकी में एक सफ़ेद पर उड़ता हुआ आया और अंदर आकर जहाँ जमशेद सांप के रूप में ज़मीन में गड़ा हुआ था वहाँ उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा। जमशेद उसे हैरानी से देखने लगा। पहले तो जमशेद ने उसे भी बाहर चलती तेज़ हवा का करिश्मा समझा कि तेज़ हवा किसी परिंदे के सफ़ेद पर को उड़ाकर अंदर ले आई है और हवा में उसके ऊपर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब सफ़ेद पर जमशेद के सांप के सर के ऐन ऊपर आकर हवा में रुक गया और वहाँ से ना वो किसी तरफ उड़ रहा था और ना नीचे गिर रहा था, तो जमशेद कुछ चौंका और बड़े गौर से सफ़ेद पर को देखने लगा। अब सफ़ेद पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। यह किसी सफ़ेद परिंदे का छोटा सा पर था। नीचे आकर वो जमशेद के सांप के सर के ऊपर आकर टिक गया। जमशेद को एक अजीब खुशगवार सी कैफियत का एहसास हुआ। उसके जहन पर सुकून सा छाने लगा। जैसे जैसे सफ़ेद पर उसके जिस्म के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता उसके सांप के जिस्म पर फिर रहा था, जमशेद के जिस्म में जान पड़ती जा रही थी। 3 बार जमशेद के जिस्म पर फिरने के बाद सफ़ेद पर ऊपर को बुलंद हुआ और उसके ऊपर 3-4 चक्कर लगाने के बाद दरख्त के तने के शगाफ में से बाहर उड़ गया। जमशेद का जिस्म अब पत्थर की तरह बेहिस नहीं रहा था, उसमें जान पड़ चुकी थी और अब वो अपने जिस्म को हरकत दे सकता था, हिला जुला सकता था। उसने अपने जिस्म को 2-3 बार हिलाया तो ऐन उस वक़्त जोगन शगाफ में अंदर आ गई। अब उसके हाथ में गंगा जल वाला डोल नहीं था, बल्कि एक छोटी कुल्हाड़ी थी जिसके फल की तेज़ धार अंधेरे में चमक रही थी। जमशेद उसी तरह बेजान होकर गिर कर पड़ा रहा और उसका जिस्म ज़िंदा हो चुका था, मगर उसने यही ज़ाहिर किया कि वो बेजान है। जोगन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर उसका दिल खौफ से डूबने लगा। कुल्हाड़ी से ज़ाहिर होता था कि जोगन उसके जिस्म के टुकड़े करके उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का इरादा रखती है। जोगन जमशेद के करीब आकर बैठ गई और बोली, मिनश, संसार में तेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, तेरी ज़िंदगी की चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं। मैं तुम्हें यहाँ से वापस शो जी के स्थान पर ले जा रही हूँ, जहाँ मैं तेरे साथ टुकड़े करके उन्हें शो जी की भीड़ चढ़ा दूँगी और उसके साथ ही मैं पाताल, ज़मीन और आकाश के अवतारों की सबसे बड़ी पुजारन बनकर जन्म जन्म के चक्कर से आज़ाद हो जाऊंगी। जोगन ने इतना कहकर अपनी उंगली कुल्हाड़ी के फल की तेज धार पर फेरी। उसकी उंगली में से खून टपकने लगा। जोगन ने अपनी उंगली का खून जमशेद के सांप जैसे बदन पर फेर दिया। जमशेद को इंतहाई सख्त नागवार बू आने लगी थी। न जाने क्यों जमशेद के दिल में एक ख्याल यकीन बनकर बैठ गया था कि ये जोगन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और कुदरत उसकी ज़रूर मदद करेगी। अगरचा ज़िंदा बचने की उसे बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आई थी। जोगन की उंगली के खून ने जमशेद के सांप वाले जिस्म को एक बार फिर सुन कर दिया था। उसने 1-2 बार अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। जोगन एक एक करके उसके जिस्म में धंसी हुई लंबी सुइयों को निकालने लगी। जब सारी सुइयां जमशेद के जिस्म से निकल गईं, तो एक बार फिर उसने अपने जिस्म को हरकत में लाकर वहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म बिल्कुल नहीं हिल रहा था। जोगन ने उसे अपने लंबे बालों में लपेटकर बालों का जूड़ा अपने सर के ऊपर करके बांध लिया। जमशेद सांप की शक्ल में उसके जूड़े में फंस चुका था। जोगन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उठी और रात की तारीकी में दरख्त के तने के अंदर से निकलकर जंगल में चल पड़ी। उसका रुख दरिया की तरफ था। वो जंगली दरख्तों के दरमियान तंग रास्ते से गुजर रही थी। दरख्त की खो से निकलने और बाहर की फ़िज़ा में आने के बाद
जमशेद ने अपने बदन में हल्की सी गर्माइश महसूस की। ये गर्माइश उसके सारे बदन में सरायत कर गई। अब वो अपने जिस्म को थोड़ी हरकत दे सकता था। जोगन दरख्तों के दरमियान चल रही थी। जमशेद अपनी पूरी कुव्वते इरादी का जोर लगाकर जोगन के बालों के जूड़े से आधा बाहर निकल आया। अब उसमें मज़ीद बाहर निकलने की सकत नहीं रही थी। वो चाहता था कि जोड़े में से पूरा बाहर निकलकर अंधेरे में एक तरफ छलांग लगाकर जंगल में गायब हो जाए, मगर वो सिर्फ अपना आधा दाढ़ ही बाहर निकाल सका था। चलते हुए जोगन का जूड़ा उसके सर के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। जमशेद को हल्के हल्के धचके लग रहे थे। वो अपने निचले धड़ को भी बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, जो जूड़े के बालों में फंसा हुआ था, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। उस वक़्त जोगन नीचे को झुकी हुई शाखों वाले दरख्तों में से गुजर रही थी। कभी कभी किसी दरख्त की शाख उसके सर से टकरा जाती थी। कुदरत को जो मंजूर हो वो होकर रहता है। अब ऐसा हुआ कि एक दरख्त की शाख कुछ इस तरह से जोगन के जूड़े से टकराई कि जमशेद का बाहर को निकला हुआ जिस्म शाख में उलझ गया और जोगन के आगे बढ़ते ही जमशेद के सांप वाले जिस्म को दरख्त की शाख ने जूड़े में से निकालकर ऊपर उठा लिया। वो शाख में उलझा हुआ रह गया और जोगन आगे निकल गई। उसे पता ही न चल सका कि जमशेद का सांप वाला जिस्म उसके जूड़े से अलग होकर दरख्त की शाख के साथ लिपट कर रह गया है। जमशेद उसी तरह दरख्त की शाख से चिमटा रहा। उसे डर था कि ज़रा आगे जाकर जोगन को ज़रूर मालूम हो जाएगा कि उसका शिकार उसके जूड़े से निकल चुका है और वो वापस आकर उसे दरख्त की शाख से उतार कर दोबारा अपने कब्ज़े में कर लेगी। अब जमशेद का निचला धड़ भी काम करने लगा था। वो किसी तरह वहाँ से निकल कर दूर जाना चाहता था। उसने अपने आप को दरख्त की शाख से नीचे गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही जमशेद ने एक तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अगरचा उसके रेंगने की रफ्तार बहुत सुस्त थी, मगर वो रुकने की बजाय रेंगता चला गया और कुछ ही देर के बाद दरख्तों वाले तंग रास्ते से दूर निकल गया। वो जोगन की शक्ति देख चुका था। उसे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो इंसान की बजाय सांप का रूप धार चुका था, जिसकी वजह से उसे सख्त घबराहट हो रही थी। उसे सफ़ेद पर का ख्याल आ गया, जिसने उसे जोगन की कैद से आज़ाद कराया था। ज़रूर ये सफ़ेद पर कुदरत ने उसकी मदद के लिए भेजा था। काश वो सफ़ेद पर उसे सांप के जिस्म से भी निजात दिला देता। यही कुछ सोचते हुए वो झाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता चला जा रहा था। उसी तरह रेंगते रेंगते वो नदी के किनारे पहुंच गया। ये वही नदी थी जहां से जोगन उसे अपने साथ लेकर आई थी। वहां कुछ देर रुक कर वो सोचने लगा कि क्या करे। आखिर उसने नदी पार करने का फ़ैसला किया और नदी में उतर गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नदी के पानी का बहाव बड़ा तेज़ है। जैसे ही वह नदी में उतरा, पानी का तेज़ रेला उसे कुछ इस तरह आगे की तरफ ले गया। उसने तैर कर दूसरे किनारे तक जाने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का तेज़ बहाव उसे आगे ही आगे लिए जा रहा था। वो अपने सांप वाले जिस्म को ज़्यादा हरकत भी नहीं दे सकता था। नदी का बहाव उसे देखते देखते कहीं से कहीं ले गया। एक जगह नदी मोड़ मुड़ती थी। जमशेद नदी के बहाव के साथ ही मोड़ मुड़ने लगा तो पानी के तेज़ रेले ने उसे दूसरे किनारे की झाड़ियों के करीब फेंक दिया। उसने फ़ौरन झाड़ियों के गिर्द अपने जिस्म को लपेट लिया। कुछ देर वो उसी तरह पड़ा रहा। वो आधा पानी में डूबा हुआ था। आकर उसने हिम्मत करके एक झाड़ी को छोड़कर दूसरी झाड़ी की शाखों को पकड़ लिया। ये झाड़ी खुश्क किनारे पर थी। वहाँ से वो रेंगता हुआ नदी से बाहर आ गया। नदी के दूसरे किनारे पर भी घना जंगल था। भीगी हुई रात की तारीकी में उसे धुंधला धुंधला इतना ही दिखाई दे रहा था जितना एक सांप को अंधेरे में दिखाई देता है। अंधेरे में उसे एक जानब दरख्तों की एक बारादरी सी नज़र आई। वो उसी तरफ चलने लगा। बारादरी के करीब आकर वो ठहर गया। उसने देखा कि बारादरी की एक तरफ को झुकी हुई थी। ये किसी पुरानी तारीखी बारादरी का खंडर लगता था।
अचानक उसे किसी सपेरे की बीन बजाने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक झाड़ी में छुपा बीन की आवाज़ सुनने लगा। बीन की आवाज़ करीब होती जा रही थी। उसे खतरे का एहसास हुआ, कहीं ये सपेरा उसे पकड़ ना ले। वो जल्दी से झाड़ी में से निकलकर दूसरी तरफ रेंगने लगा, मगर वो ज़्यादा तेज़ नहीं रेंग सकता था। बीन की आवाज़ उसके और करीब होती जा रही थी, जैसे बीन की आवाज़ उसका पीछा कर रही हो। जैसे ही वह झाड़ी में से निकलकर थोड़ी सी खुली जगह पर आया तो सपेरे ने उसे देख लिया। ये सपेरा मंगला टीम के शीशनाग के मंदिर का सपेरा था। वो रात के वक्त दरिया पार करके शीशनाग के मंदिर की तरफ जा रहा था कि अचानक जंगल में उसने एक अजीबोगरीब बू महसूस की। उस बू में सांप और इंसान की मिली जुली बू थी। सांपों के साल हा साल के तजर्बे ने उसे बता दिया कि ये उस सांप की बू है जो आदमी का रूप भी धार सकता है। ऐसा सांप किसी किस्मत वाले सपेरे को ही मिलता था। सपेरे ने उसी वक्त बीन निकाली और उसे बचाते हुए उस तरफ चलने लगा जिस तरफ से उसे सांप की बू आ रही थी। जमशेद सांप के रूप में झाड़ियों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ जा रहा था कि सपेरा उसके सर पर पहुंच गया। सपेरे ने सांप को देख लिया था। उसने झपट कर जमशेद सांप की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी नाक के करीब लाकर सूंघा। उसमें से किसी इंसान की बू भी आ रही थी। सपेरे ने जल्दी से सांप को पटारी में बंद किया और तेज तेज कदमों से शीशनाग के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। इस दौरान जोगन कश्ती का चप्पू चलाती दरिया में चली जा रही थी। अचानक उसे अपने कब्जे में किए हुए जमशेद वाले सांप का ख्याल आ गया। उसने चप्पू छोड़कर अपने जोड़े में हाथ डाला तो मालूम हुआ कि उसके जोड़े में सांप नहीं है। जोगन ने जल्दी से जोड़ा खोल दिया और उसे अपने खुले बालों में सांप को तलाश करने लगी, मगर सांप कहीं भी नहीं था। जोगन परेशान होकर उसी वक्त कश्ती को किनारे पर ले आई और कश्ती से उतरकर सांप की तलाश में जिस तरफ से आई थी उसी तरफ जंगल में चल पड़ी। उसे किसी जगह से भी जमशेद सांप की बू नहीं आ रही थी। वो दरख्त की खो में आ गई। जमशेद सांप वहाँ भी नहीं था। वो समझ गई कि उसका शिकार उसके हाथ से निकल गया। वो गज़बनाक होकर शिव जी के स्थान की तरफ चलने लगी कि स्थान की दीवार में लगी हुई कलश देवी की मूर्ति से आगाही हासिल करे कि सांप कहाँ चला गया है। जोगन की सारी तपस्या, सारी मेहनत ज़ाया हो गई थी और ये उसे कभी गवारा नहीं था। वो हर हालत में जमशेद को तलाश करके उसे दोबारा कब्जे में करना चाहती थी। शो का स्थान वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुंचकर जोगन टेले के अंदर स्यासतूनों वाले दालान में आ गई, जहाँ कलश देवी की मूर्ति थी। मनहूस मूर्ति की लाल जुबान नीचे को लटक रही थी। जोगन ने जाते ही माथा टेका और बोली, देवी, वो इंसान मेरे हाथ से निकल गया है जिसकी वजह से मुझे अमर होकर जन्म जन्म के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद होना था। मेरी मदद कर और मुझे बता दे कि यह इंसान इस वक्त कहाँ है। जोगन ने आंखें बंद कर लीं और हाथ बांध कर खड़ी हो गई। उसे जैसे कलश मूर्ति की आवाज़ सुनाई दी। मूर्ति ने कहा, मंगला टीम शहर की तरफ जाओ, और उसके बाद आवाज़ खामोश हो गई। जोगन को जमशेद का सुराग मिल गया था। उसने आगे बढ़कर कलश देवी की मूर्ति की लटकती हुई जुबान पर हाथ रखकर अपने चेहरे पर फेरा और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर मंगला टीम शहर का रुख कर लिया। जोगन बड़ी शक्ति वाली औरत थी, लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं आई थी कि अलूप मंदिर के असर से वह जमशेद को सांप के रूप में पहचान जरूर सकती थी और उसे उसके अंदर छुपे हुए खूनी असीब के साई की भी बू महसूस हो सकती थी। मंगला टीम शहर पहुंचने के लिए जोगन को दरिया में 10 कोस का सफ़र तय करके एक कस्बे के रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। वो तेज तेज कदमों से जंगल में से गुजरती हुई दरिया के घाट पर आई और अपनी कश्ती में बैठकर कश्ती को दरिया के बहाव पर डाला और तेज तेज चप्पू चलाना शुरू कर दिया।
लेकिन सफ़र काफ़ी तवील था। दरिया में सफ़र करते करते रात ढल गई और दिन की रोशनी फैल गई। दरिया में 10 कोस का उसका सफ़र तय करने के बाद वो उस कस्बे में आ गई जहाँ से उसे रेलगाड़ी पकड़नी थी। वो कस्बे के रेलवे स्टेशन पर आकर रेलगाड़ी का इंतज़ार करने आई। रेल आई तो वो उसमें सवार होकर मंगला टीम शहर की तरफ रवाना हो गई। दिन निकलते निकलते सपेरा भी मंगला टीम शहर पहुंच गया था। वो सीधा शहर के सबसे पुराने शीश नाग के मंदिर में आ गया। उस मंदिर में सांपों की पूजा होती थी और शीश नाग सांप का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। मंदिर का पुजारी सपेरे को जानता था। उस वक़्त मंदिर का पुजारी मुंह अंधेरे की पूजा पाठ से फारग होकर अपनी कोठरी के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ था कि सपेरा आ गया। सपेरे ने पुजारी से कहा, महाराज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी शय लाया हूँ जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुजारी ने पूछा, ऐसी कौन सी शय लाए हो, मैं भी तो देखूं। सपेरा पुजारी के सामने ज़मीन पर बैठ गया और बंद पटारी ज़मीन पर रख दी और बोला, महाराज, आपको खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्ञानी ज्ञान हैं, सब कुछ जानते हैं। इस पटारी में शीशनाग देवता का अवतार बंद है। पुजारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो नाथन? सपेरे का नाम नाथन था। सपेरा बोला, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख लें।